Hello everyone and welcome to Geeks for Geek School. In this video, we are going to cover another topic of ICSE crash course, which is circular Q. So let's start with this topic. In this topic, we are going to cover only basics of circular Q and how Q is different from circular Q and a basic application of circular Q using arrays. Okay, so let's start. Now, basically, a circular queue is a linear data structure. So just like Q, circular queue is also a linear data structure in which the operations are performed on FIFO. So in Q, we used to operations are performed on base of FIFO. So उसी की तरह circular queue में भी operations FIFO के base पे ही perform होंगे, first in first out. ठीक है, operations अलग नहीं होंगे, functionality अलग नहीं होगी circular queue और normal queue की. But let's see what's the differences. But the last position is connected back to the first position. तो जो last position है वो first position से connected back होगी to make it a circle and it will become kind of a circle. Okay, it is also called ring buffer. इसलिए आप ring buffer भी कह सकते हैं circular queue को. Okay, I hope this thing is clear. We are going to see, मैं एक diagram दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि how circular queue works. Okay, so in normal queue we can insert elements until queue become full. तो normal queue में क्या होता है, normal queue का कुछ array implementation इस तरीके का होता है कि अगर ये एक queue है तो इसमें 5, 9, 31, 42 एलिमेंट्स डाला, क्यू फुल हो गई. अब इसमें कुछ नहीं हो सकता. इवन इफ अगर मैं यहाँ से डी क्यू करने लगूँ एलिमेंट, तो अगर मैंने यहाँ से डी क्यू किया एलिमेंट तो सबसे पहले 5 जाएगा, फिर 9 जाएगा. अगर मैंने 2 बार डी क्यू कर दिया, इवन इफ वी हैव स्पेस इन दिस एरे, बट हम इसमें यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते इस क्यू में, राइट. सो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी. नाउ लेट्स सी हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग सर्कुलर क्यू वाला टेक्निक. ओके, but once queue become full, we cannot insert the next element even if there is a space in front of the queue. तो यहाँ पे queue में in front में space है, but we are not able to insert anything over here, right? ये हमारा queue में होता है, but इसको हम और improvise करेंगे in circular queue. We are going to see that in a bit. Okay, now this is a diagrammatic representation of a circular queue. ये diagrammatic representation है. तो जैसे कि आप देखो कि हमारा queue में क्या होता है, ये बस ये समझ लो कि ये एक नॉर्मल क्यू है, नॉर्मल एरे क्यू है. इसमें 7 इंडेक्सेस है ना. सो लेट मी जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक दिस लीनियर रिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इसमें 8 होंगे. ओके, 7, 8. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, so this will not be here. Okay, so ये क्यू बिल्कुल, ये क्यू और ये बिल्कुल सेम है. ओके, कैसे सेम है, I'll show you in a bit. Okay, so basically this and this are totally same. यहाँ मैंने इस 7th इंडेक्स को 0 से कनेक्ट कर दिया है. so ये कुछ इस तरीके से बन गया है. ओके, ना यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी. तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 10 इन क्यू किया, तो यहाँ पे 10 आ गया. आपने 20 इन क्यू किया, यहाँ पे 20 आ गया. देन 30 इन क्यू किया, देन 40 इन क्यू किया, देन 50 इन क्यू किया, एंड सो ऑन एंड ऑन, राइट. सो दिस इज माई फ्रंट एंड दिस इज माई रेयर फॉर नाउ. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंटेशन and this representation is exactly same क्यों, but यहाँ पे क्या है ना कि इसके बाद मैं यहाँ पे जा सकती हूँ. मेरे पास ये लिबर्टी है कि इस इंडेक्स के बाद मैं वापस यहाँ जा सकती हूँ. तो अगर मैं इसको इमेजिन आपको और इजीली कराना चाहूँ तो आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस. ओके, आप इसको देखोगे. सो बेसिकली आप यहाँ के बाद आप यहाँ पे मूव कर सकते हो. ओके, सो इफ यू are at this index, इसके बाद आप यहाँ मूव कर सकते हो. ये नॉर्मल क्यू में हमारी फंक्शनैलिटी नहीं थी, यहाँ पे हमने ये फंक्शनैलिटी क्रिएट कर दी है. ठीक है, so that's why it is a circular queue. ठीक है, now we are going to see this in an example. Okay, so as you can see ये मैंने एक circular queue बनाई है and at this point हमने यहाँ पे 14 in queue किया and front and rear are initially pointing towards here only. फ्रंट एंड रेयर दोनों इसी पॉइंट पे हैं.
let me also create indexes over here. So what I'll do is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so इसका साइज 5 है, 4 इंडेक्सेस है एंड इनिशियली मैंने एक एलिमेंट डाला है एंड फ्रंट एंड रियर उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. ओके, नाउ हम एक एक करके एलिमेंट NQ करेंगे एंड देन DQ करेंगे, देन अगेन NQ करेंगे. सो उससे आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आएगी. ओके, नेक्स्ट इज नाउ मैंने इसमें NQ किया 22, NQ किया 22, तो 22 नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव NQ 13. अब मैंने इसमें 13 NQ किया तो रेयर आगे बढ़ गया. यू नो रेयर पे ही हमारा एडिशन होता है. रेयर आगे बढ़ गया एंड Q हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है, राइट. नेक्स्ट इज NQ -6. अब हमने इसमें -6 ऐड किया, सो रेयर आगे बढ़ गया, फ्रंट वहीं पे अभी. ओके, नेक्स्ट इज दिस. अब मैंने क्या किया, मैंने DQ ऑपरेशन किया. जब मैंने DQ ऑपरेशन किया तो DQ ऑपरेशन क्या करता है, फ्रंट पे जो आपका एलिमेंट है उसको हटा देता है, फ्रंट को आगे बढ़ा देता है. तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे पहले 14 था, आई गेस 14 था, कोई तो नंबर था एंड फ्रंट आपका यहाँ पॉइंट कर रहा था. बट बिकॉज अब मैंने DQ ऑपरेशन किया है, क्योंकि DQ ऑपरेशन किया है यहाँ, राइट, तो मेरा ये एलिमेंट हट गया एंड फ्रंट आगे बढ़ गया एंड रेयर अपनी जगह पर ही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. अब क्या करेंगे हम, अगेन DQ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट था वो भी हट गया एंड फ्रंट आगे बढ़ गया. नाउ अगेन आप क्या करोगे, आपने NQ किया 9, तो आपका फ्रंट यहाँ है, रेयर आगे बढ़ा, 9 इंसर्ट हुआ. अब अगर ये आपकी नॉर्मल अरे होती, लाइक अगर आपकी ये नॉर्मल क्यू होती, अगर मैं एक नॉर्मल क्यू बनाऊं, ओके, 0, 1, 2, 3, 4. सो इनिशियली यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 22 था, देन हमने 13 ऐड किया, देन हमने -6 ऐड किया, राइट, एंड हमने 9 ऐड. बेसिकली इसके बाद हमने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया. सो हमारी क्यू कुछ इस तरीके से बनती है. ओके, हमारी क्यू कुछ इस तरीके से बनती एंड मेरा फ्रंट है यहाँ पे, फ्रंट मेरा इस इंडेक्स पे है एंड रेयर इस इंडेक्स पे, राइट. अब अगर ये मेरी नॉर्मल क्यू होती है और मुझे कुछ और इसमें इंसर्ट करना होता, इवन दो मेरे पास खाली स्पेस है बट मैं नहीं कर पाती, राइट. ये मेरी नॉर्मल क्यू की फंक्शनैलिटी है. बट अब आप देखोगे कि इसके बाद अगर मैं फिर से कुछ NQ करूंगी तो इस केस में एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे इजीली. सो दैट्स व्हाई सर्कुलर क्यू इज मच बेटर देन नॉर्मल क्यू, बिकॉज ये आपका स्पेस या मेमोरी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है. ओके, एज यू कैन सी अब मैंने NQ किया 20, तो मेरा 20 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, बट ये नॉर्मली क्यू में नहीं होता. एंड अगेन इफ यू विल सी, अगेन आई हैव डन NQ 5, तो यहाँ पे 5 इंसर्ट हो गया. अब अगर मैं फिर से NQ करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नाउ वी हैव अचीव्ड टू अ कंडीशन वेयर रेयर इज इक्वल्स टू फ्रंट -1. ओके, सो ये वाली, एक तो ये वाली जो कंडीशन है ना, आपको ये बताएगी कि आपकी सर्कुलर क्यू भरी हुई है. अगर रेयर इज इक्वल्स टू फ्रंट -1 तो आपकी सर्कुलर क्यू भरी हुई है. ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ भी NQ नहीं हो पाएगा. एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे DQ करने लगूँ एलिमेंट्स, तो ये 13 हट जाएगा, फ्रंट यहाँ पॉइंट करने लगेगा, राइट. सो ये स्पेस खाली हो जाएगी एंड अगेन यहाँ पे कुछ NQ हो सकता है. ओके, आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. Now let's quickly see operations on circular queue. Okay, the first one is NQ, and NQ के साथ आप एक वैल्यू देते हो जो इंसर्ट होती है. This function is used to insert an element into the circular queue. इस फंक्शन की हेल्प से आप एलिमेंट डाल सकते हो सर्कुलर क्यू में. In a circular queue, the new element is always inserted at rear position. एलिमेंट हमेशा रेयर पोजीशन पे ही इंसर्ट होता है. ओके, नाउ चेक. अब हमें कुछ चीजें चेक करनी है अपना इंसर्शन से पहले. चेक वेदर द क्यू इज फुल. अगर हमारी क्यू फुल है तो आप उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते. कूल. सो हियर इज द चेकिंग कंडीशन कि अगर रेयर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपकी नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है, कि रेयर इज इक्वल्स टू साइज -1 एंड फ्रंट इक्वल 0. अगर आपका एक क्यू है, ठीक है, अगर आपका ये एक क्यू है
3 एलिमेंट्स का, फ्रंट आपका 0 पे है एंड रेयर आपका साइज -1 पर है। फ्रंट 0 पे है, रेयर साइज -1 पे है, तो भी ये क्यू भरी हुई है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी सर्कुलर क्यू की, बट उससे पहले आप नॉर्मल क्यू की भी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्यू की कंडीशन आपने चेक कर ली कि अगर रेयर आपका साइज -1 पे है एंड आपका फ्रंट 0 है, तो इसका मतलब क्यू पूरी भरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू चेक, ये तो आपकी नॉर्मल क्यू की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट थिंग इज सर्कुलर क्यू की कंडीशन जो मैंने बताई थी कि इफ रेयर इज इक्वल्स टू फ्रंट -1, if this is the case then also your queue is full. Okay, next point is if it is full then display queue is full, ठीक है। अगर ये full है तो आपने डिस्प्ले कर दिया that queue is full, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपकी क्यू फुल नहीं है तब आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे, आप चेक करोगे कि अगर आपका रेयर इज इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो बेसिकली ये कौन सी कंडीशन हो गई कि आपका जो रेयर है, रेयर आपका यहाँ पे है, ठीक है, एंड फ्रंट आपका मान लो यहां पर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका रेयर चेंज होगा, अब आपका रेयर 0 पे आएगा। अगर रेयर इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये क्या है कि आपकी इनिशियल की जो बेसिकली मेमोरी में कुछ गोल सा क्यू नहीं बनेगा, क्यू ऐसा ही बनेगा। वो आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए एग्जाम्पल दिखाया गया था, आपको इसके बेसिस पे कंडीशन सोचनी है। तो अगर आपका रेयर साइज -1 है एंड आपका फ्रंट आपका जो फ्रंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका इसका मतलब फ्रंट से पहले थोड़ी स्पेसेस खाली है। तो आप क्या करोगे, आप रेयर को 0 पे रख के एंड यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करोगे। ओके, सो यू कैन सी इफ इट इज ट्रू देन सेट रेयर इक्वल्स टू 0 एंड इंसर्ट द एलिमेंट। आप रेयर को 0 करोगे और आप वहां पे एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे। ओके, now next thing is dequeuing an element. dequeue मतलब remove करना। so this function is used to delete an element from the circular queue. okay, in a circular queue the element is always deleted from the front position. तो normal queue की तरह circular queue में भी front से element delete होता है। okay, now what you have to do is फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आपकी क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो आपका अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। चेक वेदर क्यू इज एम्प्टी मींस चेक फ्रंट इक्वल टू -1। अगर आपका फ्रंट -1 के बराबर है, इसका मतलब आपका क्यू एम्प्टी है, तो आप उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, इफ इट इज एम्प्टी देन डिस्प्ले क्यू इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो आप नॉर्मल अंडरफ्लो की कंडीशन दे दो एंड इट्स फाइन। Okay, next is अगर Q empty नहीं है then you have to remove an element. So what you are going to do is you are going to check if front equal to rear. If it is true then set front equal to rear equal to -1. अब front equal to rear किस कंडीशन में आएगा? See, front equal to rear उसी कंडीशन में आएगा कि मान लो मैंने यहाँ पे NQ किया 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5, देन मैंने DQ कर दिया 3, ओके, देन 4, देन मैंने NQ किया 7, ओके, मेरा फ्रंट अभी यहाँ है, ओके, एंड रेयर यहाँ पे है। ओके, ना अगेन मैं NQ कर रही हूँ कुछ एलिमेंट, नो अगेन मैं DQ कर रही हूँ एक एलिमेंट, मैं अगेन DQ कर रही हूँ 5 को। ओके, नाउ माय फ्रंट हैज चेंज। अब मेरा फ्रंट यहाँ नहीं पॉइंट करेगा, अब मेरा फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा, मेरा फ्रंट इस पे पॉइंट करेगा। सो किसी भी कंडीशन में अगर फ्रंट और रेयर एक ही एलिमेंट पे पॉइंट करें, इसका मतलब उस पूरी क्यू में एक ही एलिमेंट है। अगर कभी भी मेरा फ्रंट और मेरा रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्यू। ओके, सो देन सेट फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, दैट मीन्स आपकी क्यू को आप एम्प्टी कर दो कंप्लीटली। ओके, एल्स अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज इफ फ्रंट इक्वल टू साइज -1। अब फ्रंट इक्वल टू साइज -1 का मतलब क्या है कि फ्रंट यहाँ पे है एंड रेयर कहीं भी हो सकता है। अब हम रेयर को जनरलाइज रख रहे हैं, ठीक है, अभी इनिशियली, ठीक है। आपका फ्रंट इक्वल टू साइज -1 है, देन इन दैट केस इफ इट इज ट्रू देन सेट, ओके, इफ इट इज ट्रू देन सेट फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रिटर्न द एलिमेंट। अगर ये चीज ट्रू है देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप फ्रंट को 0 पे पॉइंट कर दो एंड इस एलिमेंट को रिटर्न कर दो, ठीक है। So I hope this thing is also clear. ये point भी clear है सबको? If you have any kind of doubt, you can ask from me on Discord channel. Okay, the link of the Discord channel is in the description box.
ओके, सो आई होप कि NQ DQ आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज फ्रंट बेसिकली क्या करता है, जो भी फ्रंट इंडेक्स पे आपका एलिमेंट होता है वो रिटर्न करता है. एंड सिमिलरली वी हैव रेयर. व्हाट रेयर डज इज कि जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होता है क्यू का वो रिटर्न कर देता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ NQ DQ ऑपरेशन इज बिग O ऑफ 1. क्योंकि हम कहीं भी लूप यूज नहीं कर रहे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी NQ DQ दोनों की बिग O ऑफ 1 है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशंस. अब आपने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया, क्यों बेनिफिट सर्कुलर क्यू क्यों बेटर है नॉर्मल क्यू से, ये भी पढ़ लिया. अब उसके एप्लीकेशंस क्या है रियल वर्ल्ड में वो देख लेते हैं. सो नंबर 1 इज मेमोरी मैनेजमेंट. The unused memory location in the case of ordinary queues can be utilized in circular queue. So, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल क्यूज में जो आगे की स्पेस होती है DQ के बाद वो वेस्ट हो जाती है, बट सर्कुलर क्यू में आप उस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, सो आपकी मेमोरी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज ट्रैफिक सिस्टम. सो आप नॉर्मली जो ट्रैफिक सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं. इन कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम, सो जो नॉर्मली आपके ट्रैफिक रेड लाइट्स होती हैं, तो जहां भी आपकी कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, सर्कुलर क्यू इज आल्सो यूज्ड टू स्विच ऑन द ट्रैफिक लाइट्स वन बाय वन रिपीटेडली एज पर द टाइमर सेट. सो आपके टाइम के हिसाब से सर्कुलर क्यू की हेल्प से आप बार बार अपना रेड येलो ग्रीन लाइट्स को चेंज करते रह सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम सेट है. ठीक है, तो उसमें भी आपका सर्कुलर क्यू यूज होता है. ओके, next is CPU scheduling. Operating systems, so in operating systems often maintaining a queue of process that are ready to execute or that are waiting for particular event to occur. So basically ये आपके स्कूल लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको दिमाग चलाना है, बस आपको इतना सोचना है कि आपके कंप्यूटर में क्या होता है. आपके कंप्यूटर में भी एक क्यू, काइंड ऑफ क्यू मेंटेन होती है जो आपको वर्क को प्रायोरिटी देती है. बेसिकली सबसे पहले मैंने कहा, मान लो मेरा सिस्टम स्लो चलता है, मैंने अपने सिस्टम को बोला कि पहले 2 नंबर को ऐड करो. ओके, पहले 2 नंबर को ऐड करो, देन उसको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, देन उसमें सब्ट्रैक्ट करो कोई नंबर. ठीक है, एंड देन मैंने एडिशन प्रोसेस कर लिया. ठीक है, एंड अभी मेरा प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन पे है, तो मैं कहूंगी अरे मल्टीप्लाई के बाद लेट्स ऑल्सो डू वन थिंग, लेट्स डिवाइड, लेट्स फाइंड द मॉड्यूलस किसी नंबर से. ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू आपके CPU शेड्यूलिंग में भी, आपके जो भी प्रोसेस होते हैं उनको स्टोर करने में भी काम यूज होती है. ठीक है, आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर. सो या बेसिकली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर सर्कुलर क्यू. बस आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर्कुलर क्यू क्या है, क्यों बेटर है क्यू से, उसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आप NQ DQ किस तरीके से करते हैं. एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आया. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन Discord channel. The link is in the description box. Okay, and I'll be more than happy to help you. So yeah, that's it from my side. And if you like the video, please click on the like button. Please subscribe to our channel, share the video with your friends, and I'll see you next time. Bye bye everyone.